Teacher, we were talking about the effective teaching, and you know that I told equilateral triangle that you can't change, it remains 60-60. So that is what the relation is. That is why most of the bridges are having equilateral triangle as a support. You travel by train, you cross Satluj, Beas or any river, you find these kind of structure, even the footover flyovers. So mathematics is the biggest vital subject. In effective teaching, मैथमेटिक्स भय मुक्त भारत, ये मेरा अभियान है. हालांकि मेरा प्राइम सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, बट बीइंग एन इंजीनियर वी आर गुड इन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. I have to ask one question: how will you make balance in a class above average, below average and average students? Do you know contour, CONTOUR? Crest at the same amplitude, एक जैसा. कैसे हैंडल करेंगे उसको? above average, below average कैसे हैंडल करेंगे? अब जैसे छोटे बच्चों को आप टीच करते हो, मैं बड़े क्लास की बात ही नहीं करता. सबसे टफेस्ट काम है छोटे बच्चों को पढ़ाना. मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कांट. लेट मी टेल यू, आई सैल्यूट. दैट इज व्हाई मदर टीचर्स वर अपलॉडेड हियर. डियर टीचर्स, आपको सभी स्टूडेंट्स को एक कॉमन वे से लेना पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ टीचर्स ने डिस्कस किया कि सर सिलेबस को भी टाइम पे करवाना है, अथॉरिटी को भी जवाब देना है. सी, प्रिंसिपल coordinator is replicable to principal, principal ma'am is replicable to the head office, head office is replicable to the MD and so on, and ultimately it's a chain. We have to respect that chair. A principal is saying something to us, the coordinator is saying something to us. It's the chair, you know, we have to respect and we have to listen what they are saying. Now my question to you all is, are you comfortable? Sure? Yes. How will you maintain a balance, average and above average and below average? Yes ma'am, आइए. Yes, yes. एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैम यहाँ बैठे हैं, वी रिस्पेक्ट हर एंड शी इज़ वंडरफुल, बट कितने हम्बल हैं, बोलते मैं भी कुछ सीखूंगी. तो इसलिए मैम भी हमारे जैसे बन चुके हैं अब, तो आप रिलैक्स होके बोलिएगा. मतलब होता है कई बार जब हाई पोस्ट पे बंदा बैठा हो तो हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं. नहीं, नेचुरल चलेंगे. I'm Sandeep Kaur from Akal Academy, Kamrani. Actually, I joined when I was not even graduated. In 2017, I joined Akal Academy, Allahabad, and I was JBT there, if you know, ETT. ठीक है, 2 years का डिप्लोमा होता है फॉर टीचिंग. मैंने सिर्फ वो किया हुआ था, एंड उसके अंदर अप टू 5th वी कैन टीच ऑल सब्जेक्ट्स, राइट? पता होना है साਰਿਆਂ ਨੂੰ शायद, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ. ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ JBT ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2 years ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਐਂਡ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ देयर. ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸੇਡ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ. ਸੋ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ देयर. ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਸੋ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ
ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ 2003 ਔਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, 3rd ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਫੇਸ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ 12 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ 12 1 12 12 2 24। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਥਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਟੀਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪ ਟੂ 5th ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪ ਟੂ 8th ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ A ਫॉर ਐਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਟਰ ਕਰਵਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਹਜੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਪਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ 6-7 ਮੰਥ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਲਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, CIRC ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਚਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੋਲ। ਉਹ ਗੋਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। Thank you. God bless you. Stay here. She told me one thing. Be in the frame, please. इन्होंने एक बड़ी पुरानी बात मेरे को याद आ गई कि टीचर की बात मानते हैं. My mother was principal, and my teacher said write an essay on Dalhousie. So basically it was Lord Dalhousie, and I was adamant that it is Dalhousie Hill Station. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਅ ਮੈਮ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਲਿਖੋ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ to obey the principle. What my teacher has told, I am going to follow that. So you are having such an responsible, post. Now the question is, how we can upgrade average, below average students, because आपको ज़्यादा जनसंख्या तो एवरेज की, बिलो एवरेज की मिलेगी।
टॉपर्स तो बुरा ना मानना, टॉपर्स कभी किसी के नहीं हुए। अगर उन्होंने टॉप किया है तो मेरा बच्चा लाइक था जी, मैडम ने तो ठीक है, मुंह पे बोल देंगे अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, कुछ नहीं है, मैं दिन रात एक किए। बट अगर अच्छा नहीं किया तो मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो ऐसे हो गया। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समटाइम्स नॉट दैट थिंग्स विच वी डिजर्व, बट हमें सुनना होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यू आर ए टीचर बाय चॉइस, जो मुझे लग रहा है आप यू आर नॉट टीचर बाय फोर्स, आपने खुद पसंद किया कि मैंने टीचर बनना है, ये अच्छी बात है। एवरेज बच्चे को आप कैसे उठाएंगे स्कूल टाइम में, या स्कूल टाइम के अलावा तो एक्स्ट्रा तो अलाउड ही नहीं है, बच्चा टाइम ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल छुट्टी तो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, तो हाउ विल यू हैंडल दो स्टूडेंट्स? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। In our academy last year, we allotted like after Japji Sahib during Nitnem, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਈਚ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋ ਬਲੂਮਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢੀਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਢੀਠ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਗਾਤਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5th ਗ੍ਰੇਡਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3-4 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਥਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਥਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thank you, you can take seat, thank you very much। See, मैम ने बड़े मतलब ओपन माइंड से हर चीज़ डिस्कस की, बट क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन, जिन्हें पंजाबी च कहते हैं सुहागा किमें फेरिए, वो एवरेज अबव एवरेज, एक्चुअली इस पिछे बड़ा बहुत बड़ी मेरी स्टडी है। टीचर ते भी वो एप्लीकेबल है, स्टूडेंट ते भी एप्लीकेबल है। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੀਗਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਟੀਚਰ ਆਲਸੋ, ਸਡਨਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। और कई बच्चे कहेंगे मेरा तो स्कूल में दिल लगता है, मैं तो घर ही नहीं जाना चाहता। यू नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी एक टीचर को, एक स्टूडेंट को
अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काम लेबर का नहीं है। हमने ब्रिक्स नहीं उठा के उतारनी चढ़ानी ट्रॉली में, ट्रक में, हमने ब्रेन का काम करना है। तो जशन मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि बर्डन स्किल, क्रिएटिविटी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। एक बार मेरे को गुस्सा इतना आया, मैंने डस्टर उठा के बच्चे के मारा, इतना गुस्सा आया। उसके बाद आई फेल्ट कि यार आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाई डिड आई डू दैट? फाइन। आफ्टर दैट द स्टूडेंट, वो मेरे को प्यार करता है, वो बोलता सर आपका ये रूप हमने कभी देखा नहीं है, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? एंड इन फैक्ट आई वॉज नॉट मेंटली ओके एट दैट टाइम। तो इट हैपन्स टू अस ऑल्सो। तो वहां पर कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? सिमरन। आई ड्राइव, I either listen music, I do Simran, whatever I like, I start revising maths formulae, you know. मैं चलता हूँ, maths start कर देता हूँ, NCR n factorial n minus r factorial into r factorial, NPR n factorial n minus r factorial, factorial 0 is equal to 1, okay, 1 plus x to n, 1 plus nx n into n minus 1 upon 2 factorial x square, binomial expansion, है ना? तो उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। That is also a kind of Simran when you are reciting the formulae. Physics revise करना शुरू कर दो, n1 u1 equal to n2 u2, whatever may be the system of measurement, physical quantity remains constant. आपको जो अच्छा लगता है, start revising that, but you have to create that quality in you कि यार मैंने अपने आप को कैसे सही करना है। जैसे कार का टेम्परेचर बढ़ता है तो पंखा चलता है, कूलेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, तो इट हैपन्स विद अस। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो हम नेशन बिल्डर हैं, तभी तो हमें अवार्ड मिलता है, तभी तो हमें, मैं बोला करता हूं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें आइदर अच्छे साइंटिस्ट चाहिए या अच्छे टीचर चाहिए, वो बन जाएंगे। तो टीचर जो है बाय चॉइस, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, तो डियर टीचर्स, आपको अपने अंदर एक काउंसलर भी ढूंढना होगा। हम किसी का भी सत्संग सुनने जाते हैं, वो बेसिकली काउंसलिंग ही हो रही है, और जब तक वो सत्संग चल रहा है काउंसल्ड है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, पार्किंग के अंदर लड़ाई शुरू होगी, तू कार आगे क्यों लगाई, जोड़े घर च लड़ाई होगी, तो जूते क्यों नहीं दे रहा। Where is that kind of counseling gone? So retention is very important. तो dear teachers, आपको सभी को, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा, काउंसल करना होगा। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उनको पहले तो ये बताओ एवरेज कुछ नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे साथ बीती हुई। एक बच्चा, his name is Kabir, was studying in Guru Nanak Foundation School, Patiala. Very hyper, very naughty. तो I just saw that मैम ने उसको उसी के लेसेस के साथ, मेज के साथ नीचे बांधा हुआ है। And Dr. At that time Mr. Manohar Singh was principal. Earlier he was in Kendriya Vidyalaya, ma'am, Dharamshala. Mr. Manohar Singh, Manohar Singh, Kendriya Vidyalaya Dharamshala, and he was later director also, Guru Nanak Foundation, Ludhiana and Patiala. So logic is that I just asked ma'am, actually I used to have a guest lecture in that school. मैं कहा मैम इसको क्यों बांधा? कहते सर वेरी नॉटी, और ये बच्चा जिंदगी च कुछ नहीं कर सकता। मैंने उस बच्चे को उस स्कूल से हटा दिया। देन रियान इंटरनेशनल स्कूल आया, वहाँ कुछ टीचर्स, एक लड़की थी प्रियंका, शी वॉज माई स्टूडेंट, उसने क्या जादू मारा मुझे नहीं मालूम, आज वो मेरा बेटा है, रेडियोलॉजिस्ट है। हाउज इट?
ही इज रेडियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। टीचर ने बोल दिया ये कुछ नहीं कर सकता। हमने पेशेंस नहीं लूज की, उस बच्चे को समझा, उसकी साइकोलॉजी को समझा। तो कभी कभी वो मेरा बच्चा है, लेकिन मेरे पास उस जैसे बहुत सारे बच्चे आए, राइट, 60% वाले टॉप कर गए। क्या बॉन्डिंग! मैं बच्चों को अपने पास बैठा के रख के पढ़ाता, खाना भी वहीं मिलता। कैन यू डू दिस? माई क्वेश्चन इज टू यू, इफ यू आर ए टीचर, यू हैव टू डू दिस। टेल पेरेंट्स कि वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स, सिंस यू डोंट हैव द टाइम, यू कैन डू इट ऑनलाइन। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ऑनलाइन बच्चा बिगड़ता है, जिसने बिगड़ना वैसे भी बिगड़ जाना है। ये हमें अपने स्टूडेंट को कंडीशन करना है। डू वी कंडीशन अवर चाइल्ड? जब हम छोटे होते थे बोलते थे ये फिल्में मत देखना, फिर वीसीआर आया, वल्गैरिटी बढ़ी, फिर मोबाइल आया, वल्गैरिटी बढ़ी। तो कितना हम बच्चों को रोक सकते हैं? वी हैव टू कंडीशन अवर चिल्ड्रन कि बेटा नहीं यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तू देख क्या करना चाहता है, चूज द वे यू विश। यू हैव टू मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड। देन मैं गारंटी देता हूं एवरेज बच्चा आपकी बात फॉलो करेगा। वो ये भी बोलेगा कि मैम ठीक है, कि कितने पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मेरे साथ बोलो, इट इज इजी टू सेट अप अ क्वेश्चन पेपर। इट इज, बच्चा बोलता है डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। अब टीचर बोलता है बेटा इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द क्वेश्चन पेपर। एग्रीड और नॉट? अब जैसे पेपर अच्छा आ रहा है, बच्चे ने अच्छा लिखा है, हम खुश होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे ही पेपर में बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, गुस्सा आता है, यार क्या किया इसने, है ना? खून फूकता है कि नहीं? ये क्वालिटी ऑफ गुड टीचर है। बट क्वेश्चन ये है हम क्या करें, मैथ्स को कैसे अच्छा करें? मैं बोलता हूं जिसका मैथ्स अच्छा नहीं वो ड्राइवर भी अच्छा नहीं है। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वो लाइफ में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां से होना चाहिए। क्यों? मैथ्स से रिफ्लेक्शंस बढ़ते हैं ब्रेन के। मेरे को किसी ने बोला कि आप 30 सेकंड में 30 शब्द बोल सकते हो। मैं कहा यस। कहते बोलो। मैं कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कहते तो 10 सेकंड में कर दिए। मैं कहा यस, वर्ड्स ही हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। आप क्या करो, आपको फैक्ट बताता हूं, 5 क्वेश्चन करवाओ बस। 5 क्वेश्चंस डेली, 5 क्वेश्चंस, वो भी ज्यादा 4 करवा दो। कितने हो गए? 28 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स एंड ऑल वीक्स। क्या उससे बाद पेपर आता है? देन हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज सॉल्व करके लाओ। वहीं पर हम बच्चे का खत्म कर रहे हैं काम। या एग्जाम्पल करवा दी, एक्सरसाइज हमें भी नहीं आती। मैं ये नहीं करा आपको नहीं आती कि एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो हम लोग इजी चाहते हैं, इजी, वी ऑल वांट इजी। फिजिक्स का एक लॉ है, करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम भी चाहते हैं इजी, मैं भी चाहता हूं इजी। हर बंदा सोचता है यार बंगला हो, गाड़ी हो, नोट हो, ईडी का छापा मेरे पड़े, बहुत नोट मिले, मेरे को भी अच्छा लगे। नहीं भाई, पैसा, टीचर्स, ये कॉन्सेप्ट नॉलेज के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आप एक अपने घर में स्टूडियो बनाइएगा। उस स्टूडियो में डेली अपना यूट्यूब चैनल बनाइएगा, उसमें अपने लेक्चर लोड कीजिएगा और बच्चों को बोलो बेटा मैंने ये सारे उसमें भी डाल दिए हैं। क्रिएटिविटी है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी, माय हस्बैंड विल नॉट अलाउ दिस, ही डजंट वांट टू लुक दैट माय वाइफ शुड बी विजिबल टू दैट। अब उसमें देखिए थोड़ा तो सोच रखनी पड़ेगी। आप कनाडा जाओगे तो वहां नहीं, आप सोशल मीडिया में आएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, टीचर हो आप,
वो टीचर के अंदर वो क्वालिटी क्रिएट करो। एकेडमिक्स, अकाल एकेडमी क्या कर लेगी बताओ मेरे को? अकाल एकेडमी ने अपना करिकुलम दे देना है, अकाल एकेडमी ने आपको सैलरी दे देनी है, अकाल एकेडमी ने बोला है मैम आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या करें बताओ? आप फिर अभी बोला, फिर से बोलो, बोलो, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेल्यूर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। ये मेरा जिंदगी का सिद्धांत है। अगर मैं फेल्यूर हूं तो हूं, ये हो गया वो हो गया नहीं, है ना? तो dear teachers, find that in you, the teacher in you. You are not a teacher then if you have complaints and explanations कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा। उसके साथ दोस्ती करो यार। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट खेलता था कि चलो मैच खेलेंगे संडे को। संडे मैच खेला, अगले संडे सर मैच, यार अगले संडे एक्स्ट्रा क्लास रखें सर, फिर एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैच, डन, ठीक है। फिर मेरे पास बच्चे पढ़ते थे संडे को, मैं संडे जरूर लगाता था, उसके मुझे बड़े बेनिफिट हुए। पेरेंट्स के मन में आता है यार टीचर बड़ा मेहनती यार, संडे लगा रहा है। फिर मेरे को पता है इनको क्या चाहिए, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, ठीक है, मैंने पहले से मंगा के रख लेनी। जैसे मैम ने लंच करवाया तो बच्चे क्या है, उनको एक फील आता है कि यार फन, पढ़ने नहीं कोई आता, पढ़ाया जाता है। सुगर कोटेड कुनीन, पढ़ाई में 98% स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आने को मन होता उनका। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, ये फीलिंग्स आते हैं। और कहीं तो टीचर भी इस फीलिंग्स आते हैं और चलते हैं, देखा जाएगा 4 पैसे आएंगे ना। यू हैव टू किल दैट काइंड ऑफ सिस्टम। आप अपने घर में स्टूडियो बनाओ, उस स्टूडियो में अपने लेक्चर्स तैयार करो, उसको अपलोड करो। अगर सोसाइटी नहीं मिलती तो प्राइवेट कर दो उसको, और अपने लेक्चर्स को देखो, इसमें मेरी गलतियां क्या हैं उसमें रेक्टिफाई करो। खुद ही सीखोगे आप अपनी गलतियों से। वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। मैं नहीं कहता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने बोला था। कहाँ है वो वेयर? अरे यार टीचर तो बनो ना आप। हमें कंप्लेंट्स चाहिए, मैम हम सिलेबस नहीं कर पा रहे, सिलेबस लेंथी है, दे दो मेरे को, मैं करवाता हूँ टाइम पे। कैसे करवाऊंगा? मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? स्कूल में नहीं, एक्स्ट्रा। कैसे कैसे बताओ, टेल मी ऑन। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अडॉप्ट करता हूं। व्हाट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी देन? अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं मैं मैम को बोल रहा था जब लंच कर रहे थे कि मैम आई रिस्पेक्ट द विजन, द टेक्नोलॉजी यू हैव अडॉप्टेड। शी सेड आई हैव टू डू दिस, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, इफ आई हैव टू ईमेल आई विल डू इट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल मैम। ये चीजें सीखने को है। वी आर ऑलवेज अ लर्नर। कहाँ है यार? अपने अंदर तो ढूंढो, कहाँ है? हम ये सोचते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, जो मिल रहा है उसको छोड़ो। डोनेट योर टाइम टू द स्टूडेंट्स। पहले तो खुद में झांको अंदर कि यार मैंने करना क्या है, मैं इफेक्टिव टीचर बनूं तो कैसे बनूं। उसके लिए स्टूडियो बनाइए, खर्चिए 40-50 हज़ार रुपये, बढ़िया कैमरा, बढ़िया स्क्रीन, बड़ी सारी, जिसमें मोदी नहीं आता था भाइयों बहनों, वो स्क्रीन, रिकॉर्ड, मेक योर चैनल, अपलोड, जशन चैनल, ओके, विद जीरो बर्डन। और उसमें जशन जैसे तू बेटा पढ़ाना चाहता है ना वैसे पढ़ा, जैसे दिल करता है वैसे पढ़ा। सारा सिलेबस डाल दे, कोडावा की सारी बुक की बुक वीडियो बना दे। अलाउड सर? सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट सर, ठीक है ना? तो ये टीचर्स है, ये बच्चों को आप अपने बच्चों के साथ अप्रोच करो, उनके अंदर पहुंचो। यू शुड बी इन द हेमोग्लोबिन ऑफ योर चिल्ड्रन। फिर देखो यू विल बी द टीचर जिसकी जरूरत है स्कूल को, सोसाइटी को। हाउ इज इट? तो ये एक्सक्यूज नहीं मुझे अच्छा लगता कि सर स्कूल तो 9 से 3 होता है, 30 मिनट का पीरियड होता है, फंक्शन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। पहले हो सकता था, अब तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी लो, एंटर इट। हाउ इज इट? गलत बोला? सो बात कुछ हमने डिस्कस किया, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। एक सिंपल कैलेंडर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। एक सिंपल कैलेंडर से हमने क्रॉस मैट्रिक्स में स्टडी किया, मल्टीप्लिकेशन, और मिडल उसका डबल हो जाता है। कह क्या ये सिंपल कैलेंडर? एक आदमी इसको कैलेंडर देखता है, श्रावण भाद्रपद 2081 विक्रमी संवत, श्रावण अमावस, उसको पता है आज मौस है, आज मत्स्य है, मत्स्य दान महाकल्याण,
ओ बोल चाटे यार तू देख इसमें मैथमेटिक्स कितना बढ़िया है कि ना? मैम टीचर्स भी देखते हैं। टीचर्स पता क्या करते हैं, हे रब्बा फ्राइडे भी छुट्टी सी ते थर्सडे भी छुट्टी सी, जे सैटरडे भी छुट्टी होंदी तो कट्ठे संडे होंदा पर बाहर घूम के आंदे। नहीं उनका तो मैंने इनको उसका तो मैंने रामबाण दे दिया। आप ही से आपसे सीखा है कि 10 बंद दान करो, मैंने बोला 10 बंद टाइम दान करो, 24 घंटे का 10 बंद 24 मिनट हुए। यू कैन डोनेट। यू आर वेलकम मैम, प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर प्लीज। मैम मैं बहुत जिद्दी हूँ, आपको कैप्चर तो करूँगा। संडे को मैच लगाएं, संडे को पढ़ाएं। Are these situations possible for all of us that we will be sparing even our Sundays? Will you be able to spare? बोलो। Will you be, सच में बताओ क्या स्पेयर कर पाओगे संडे को? बहुत मुश्किल है। कितने लोग कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो। सिंसियरली, दिल से। 30 मिनट्स ओनली। आपने पूरा एक हफ्ता पढ़ा दिया, उसके बाद संडे को भी पहली बात आपको रूरल एरियाज के पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे नहीं, बच्चे आएंगे कैसे? दूसरी बात, उन बच्चों के साथ उनका परिवार है तो आपकी भी एक फैमिली है। हाउ कैन यू लीव योर फैमिली ऑल्सो? ऑनलाइन की बात भी है, घर में उनका भी परिवार है, उनके हस्बैंड ने कहना है आज के दिन भी यही लेके बैठ गई और कुछ नहीं चाहिए था। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना एक आदमी, आपने सुनी होगी, घास काट रहा था बेचारा, काटता उससे कट ही नहीं रहा था। एक लड़का आया, उसने फटाफट यूं 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 किया, फिर 2 मिनट बैठ गया, उसने कुछ 2 मिनट में कुछ किया, फिर आया घास कटा और चला गया। अब वो बुजुर्ग ओल्ड मैन देख रहा है मेरी एज का कि ये बच्चा आया आज का और मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, पसीनों पसीन हो रहा हूँ, मेरा काम हुआ ही नहीं, इसका कैसे हो गया? इतनी जल्दी आया भी और गया भी। उसने बच्चे को वापस बुलाया। लर्न करना कोई बुराई नहीं है, मैंने बोला किसी भी उम्र में हो, सीखना अच्छी बात है। बेटा ये तुमने इतना सारा काम कैसे कर लिया? मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरा तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसने कहा सर बात यह है कि आपके हाथ में जो एक्स है ना, कुल्हाड़ी, आप उसको शार्प नहीं करते हो। उस पुरानी कुल्हाड़ी से घास काट रहे हो, वो कटेगा नहीं। मैं हर आधे घंटे के बाद इसको शार्प कर लेता हूँ। So the moral of the story is, let us sharpen our axe. Let us be sharp. How to make the things reach to the kids while playing in a short time and make them understand the best of the things. हम भी सुखी, वो भी सुखी, उनका परिवार भी सुखी। ऐसा एक ज़माना होता था जब एक हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। मेरे फादर बताते हैं कि वो पाकिस्तान में पढ़ते थे, तो उनको पहले टीचर के लिए लकड़ियाँ काट के रखनी पड़ती थी, फिर पढ़ाई शुरू होती थी। अब वो टर्म्स नहीं हैं, अब वो ज़माना नहीं है। आप किसी बच्चे से काम करवा के देखो, अगले दिन पेरेंट्स आ जाएंगे कि मेरे बच्चे को मैम ने कहा था पानी लेके आओ। वो नहीं है। अच्छा अब उनकी बात छोड़ो, हमारा बच्चा भी घर जाके कहे कि मैंने ऐसे काम किया, वुड वी लाइक इट? हम कहते हैं हमने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। आज सुबह मैं जब घर से आ रही थी तो एक कोर्ट की जजमेंट पड़ी, रास्ते में आते आते ही आज की। पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को स्कूल में एसी की हवा मिलनी चाहिए। स्कूल ने एसी लगवा दिए, साथ में पेरेंट्स को कहा इतना इतना फंड हर महीने जमा करवा दिया करो। अब जब पेरेंट्स को, आज की जजमेंट है मेरे मोबाइल में, अभी है, मैंने डिलीट भी नहीं करी। पेरेंट्स ने कोर्ट केस कर दिया स्कूल को, स्कूल का नाम भी लिखा है अग्रसेन पब्लिक स्कूल समथिंग नेम, दिल्ली का स्कूल है या कहाँ का भी है। तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट हुई उसमें उन्होंने कहा कि स्कूल ने आपके कहने से एसी लगवाए थे, आपके बच्चे को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए थी, तो यू विल हैव टू पे इट। ये आज की जजमेंट है हाई कोर्ट की कि क्यों आप अपने बच्चे को। और एक और बात बताऊं, जिन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट्स बचपन में दिए हैं उनके बच्चों ने कभी तरक्की नहीं की।
more comforts you are providing, you are taking out the immunity of the kid. हमारे फादर लोग हमसे कहीं स्ट्रांग थे, हम उनसे कम हैं और हमारे बच्चे हमसे कम। आगे उनसे आने वाली अगली जनरेशन का क्या होगा वो भगवान जाने। मतलब द फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग ऑलवेज, इसको ठंडा पानी चाहिए, इसको ये वाला पानी चाहिए, आरओ का पानी के बिना ये रह नहीं सकता। भाई रास्ते में कहीं प्यास लग गई, कहीं पानी पीना जरूरत पड़ गई तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बिकॉज उसकी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो रही। सो मेरे ख्याल से हम हार्डवर्क तो करें, जैसे सर ने कहा, हम डिवोशन भी रखें, हम बहुत करें, बट अपने आप को शार्प भी करें, है ना। कुछ दिन पहले मैं उधर के रूम में बता रही थी, यूजुअली हमारे 6, 7, 8 के टीचर्स आप में से भी होंगे जो 6, 7 पढ़ाते हैं, सिलेबस नहीं खबर होता, स्वाध्याय की किताबें इतनी बड़ी हैं, इतनी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने उन मैम से पूछा कि आपके सिलेबस कवर हो गए? वो कहती, उनका मैम का, हमारी काल अकेडमी की टीचर का था वर्षन, हमारा पेपर 20th को शुरू होना है प्री मिड का। मैंने कहा हाँ जी। ब्लू प्रिंट आ गए? हाँ जी आ गए, सारे ब्लू प्रिंट आ गए। मैथ्स के लिए पूछा मैंने, तो मैंने कहा उसके बाद, कहती मैंने ना ये प्लान कर लिया था 10 तारीख तक पेपर करना है, सारा सिलेबस ख़त्म करना है, 10 दिन फिर रिवीजन करनी है पूरी। मैंने कहा जो मंडे मैथ्स टेस्ट होता है, कहती नहीं मैं अपना सिलेबस अपनी प्लानिंग से करती हूँ, जो मंडे मैथ्स टेस्ट का सिलेबस आता है ना उसकी एक एक्सरसाइज रोज़ रिवाइज करा देती हूँ, 2 या 3 एक्सरसाइजें तो होती हैं मंडे मैथ्स टेस्ट में। कहती वो मेरी रिवीजन चलती रहती है। आई एम नॉट गोइंग कि मैंने इस हफ्ते में सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजेज ही करानी है, आई एम गोइंग विद माई करिकुलम, मेरी प्लानिंग है। सो गिव अ गुड हैंड टू सच टाइप ऑफ टीचर, उसके लिए क्लैपिंग करो। जिसने अपनी प्लानिंग बनाई है उसने ये नहीं कहा कि मंडे मैथ्स टेस्ट की 3 एक्सरसाइजेज आई हैं तो मैं 3 ही करूँगी। और मैं आपको ये बताऊँ, मेरे को प्रिंसिपल्स के फ़ोन आते हैं, आपने मंडे मैथ्स टेस्ट की इस बार 4 एक्सरसाइजेज डाल दी। मैंने कहा एक्सरसाइजेज को खोलो, वहाँ पे क्वेश्चन 2-2 ही हैं। जब 4 डालते हैं तो क्वेश्चन कम होते हैं एक्सरसाइज में, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा डालते नहीं हम, आप भी करवाते ही हो ज़्यादा 3। और फिर मैंने अगला क्वेश्चन किया, 3-3 एक्सरसाइजेज करके क्या सिलेबस ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो उस टीचर ने सोल्यूशन दिया कि मैं 3-3 एक्सरसाइजेज आपकी तो लेती हूँ, वो तो मेरी रिवीजन चलती है साथ साथ, बट मैं अपना सिलेबस अपने ढंग से कवर करती हूँ। जो मंडे मैथ्स टेस्ट का सिलेबस आता है उसकी रोज़ 1-2 एक्सरसाइजेज रिवाइज कर लेती हूँ। कहती है हफ्ते में 3 बार रिवाइज हो जाती हैं, सिर्फ 10 मिनट करती हूँ रोज़ रिवीजन। सो दैट्स द वे टू डू द थिंग्स। शार्पन योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को हमें खुद शार्प करना है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, जैसे वो मैम ने कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू थिंक टू डू। जब आप ये सोच लोगे कि हमें करना है तो हो जाएगा, ठीक है। आप हौसला करोगे हर काम हो जाएगा। हमारी तो गुरबाणी भी कहती है कि अगर हम पॉजिटिव होंगे, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो मैं आपको एक कपलेट सुनाती हूँ शेयर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप नोट कर लेना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। गोल्डन वर्ड्स। तो अपने हौसलों से उड़ान भरते जाइए। कौवा है ना, कौवा बाज के कभी पीठ पे चोंच मारता है, कभी कहीं कहीं बाज को इरिटेट करता है, फिर कौवा बाज को चेज करना शुरू कर देता है। बाज हाइट गेन करता जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है डेंसिटी कम होती है, तो हायर अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन नहीं होती, बाज उड़ रहा होता, कौवे का दम टूट जाता है। तो कौवा कौन है? नेगेटिव थॉट्स। जैसे हमारे गुरबानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मछली, मत्स्य जब मीन सागर में हलचल करती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल पैदा होती है।
मत्स्य मीन सागर, राइट? तो we people are having lot of knowledge, lot of content, but all subjects are not same. I'm not good in biology, but I'm good in mathematics. मेरा adaptation. Thank you, ma'am. Thank you for your golden words. Thank you. So logic is this, that मैं एक point कहना चाहता हूँ. You have to give your extra efforts. I remember a cricket player, Kapil Dev. He used to run sector 16 cricket stadium. सुबह 4 बजे सर्दी गर्मी भागता था. I tell you one example. मेरे होम टाउन सिटी के नवजोत सिंह सिद्धू. नवजोत सिंह सिद्धू did not play well against West Indies. तो राजन बाला was a sports editor in Indian Express. He said Navjot Sidhu is a strokeless player. Navjot का nickname है Sherry. And what Sherry did, you know, शाम को बारदरी क्रिकेट ग्राउंड में वो कम से कम 2-3 बॉल्स के लेके सभी बच्चों को बोला बॉलिंग करो मेरे को, और ही kept on hitting six प्रैक्टिस. टेनिस बॉल से विकेट से 1987 और 86 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा नवजोत सिंह सिद्धू के सिक्सेस थे. लोग उसको सिक्सर सिद्धू बोलने लग गए थे, और फील्डिंग भी उसकी गजब थी, जॉन्टी सिद्धू बोलते थे. तो जब्बे जब्बे बाण लागे तब्बे तब्बे रोश जागे. आप टीचर बने हो, मालूम है आपको लड़ाई लड़नी होगी, सोसाइटी से भी आपको टाइम देना होगा. अगर आप टाइम नहीं दोगे वो बच्चा एवरेज से अबव एवरेज नहीं जा पाएगा. हाँ, उसको स्कूल में मत बुलाओ, कोचिंग में मत बुलाओ, उसको आप एक्स्ट्रा कंडीशन कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ बता दूं, वो आपकी ऑनलाइन क्लास भी तब लेगा अगर आप उसके फेवरेट टीचर हो. नहीं तो कैमरा ही बंद करके बैठा होगा, मैडम बोलने दे, राइट? सो मैं मैम 6000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सैटरडे संडे, 6000 बच्चे, एंड 98% मेरा कैमरा बच्चों का ऑन होता है. वो भी कहीं वीक होता है, क्योंकि जहाँ नेट वीक होगा फिर मैं खुद बोलता हूँ तुम ऑफ कर दे, नहीं तेरे को पिक्चर नहीं आएगी. और मुझे बेनिफिट क्या मिलता है? आई वॉज ट्रेवलिंग इन उत्तराखंड, आई वॉज गोइंग फ्रॉम अल्मोड़ा. तो रास्ते में मुझे 2 लोग मिले. सर आपको हम जानते. मैं कैसे? आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे कोविड में? मैं कहा हाँ, हम देखा करते थे, मेरे भतीजे पढ़े, चाय पी, पैसे भी नहीं लिए. ठीक इसी तरह से वेयर एवर आई गो पीपल रिकॉग्नाइज. तो मेरी फिलॉसफी कुछ पागलों वाली है. उस पागलपन में अगर किसी का पागलपन आता है तो मुझे खुशी है. कुछ करना है ना, तो फिर हटके कैसे होगा? हाउ यू कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद ऑर्डिनरी एफर्ट्स. टीचर स्मार्ट शक्ल से नहीं होता, टीचर स्मार्ट अपनी टीचिंग से होगा. मैं जम्मू में एक सर को मिला, बड़े सिंपल साधारण, लेकिन मेरी वोट लगा दी मैथ्स में. उन्होंने मेरी वोट लगा दी. हम लोग सोचते हैं कि गांव के बच्चे जो हैं वो इतने शार्प नहीं हैं. मैं कहता हूं मेट्रोपॉलिटन के बच्चों को नॉलेज नहीं है जितने गांव के बच्चों को नॉलेज है. आपका ये एरिया ना, जो बठिंडा, अबोहर, फाजिल का, मैं सैल्यूट करता हूं. इतने टैलेंटेड बच्चे हैं. मेरे पास 3 बच्चों ने टॉप किया है इंडिया में. उनमें से 2 बच्चे आपके बठिंडा के थे, रुचि जिंदल फ्रॉम बठिंडा एंड 1 मोर. सो मैं ये नहीं कहता कि आप अपना स्पेशल टाइम किल करो, आप ये करो वो करो. व्हाट इज़ योर ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी? मैं आई डोंट डोनेट, मेरे पास है ही नहीं पैसे. आई कैन डोनेट माई टाइम. यस डियर टीचर्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में हमने इमोशनली डिस्कस किए. शायद आप भी थोड़ा इमोशनल हुए, बट लॉजिक इज़ दिस दैट थैंक यू कॉर्डोवा जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की. और अमित जी आप भी थैंक यू बोलें कि शायद आपने भी एक बड़ा अच्छा रिसोर्स पर्सन ढूंढ लिया अपने अंदर, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित नागपाल. अगर अमित नागपाल ना होते तो मैं यहाँ ना आता, राइट? बट लॉजिक ये है कि कैन यू बिलीव आई जस्ट हैड ए 3 hours स्लीप. और आपको लग रहा है ऐसा है ना? ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप लोगों से मिलती है.
और जैसे मैं लेक्चर देता गया, मैं फ्रेश होता गया, जशन सुस्त होता गया, क्योंकि उसकी एनर्जी मैंने खींच ली सारी। सो यू वंडरफुल पीपल, आप बहुत अच्छे हो, यू ऑल बिलोंग टू गुड फैमिलीज। बट मेरी नज़र में, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी टीचर्स ऐसा करो। जिसका सब्जेक्ट वीक है, अगर कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता है तो कैन स्पेयर टाइम ऑनलाइन, एंड बेटर हाफ को बोलो यार मेरी सोसाइटी में, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए, राइट। तो शिव बटालवी ने भी किया है कि सानू ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਓ ਵਿਛੜਿਆ ਨੀਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਨ ਮਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਕਲੂਜਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। सब तो पहला, शुड आई स्पीक इन पंजाबी और इंग्लिश? पंजाबी ठीक है। सब तो पहला आपने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स, आपने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद द कैलेंडर। कैलेंडर तो आपने एक आइडिया आया कि एक ऑर्डिनरी चीज़ भी कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें छुपा के बैठी हुई है, देखने वाले की नज़र चाहिए है। सही है सर, दे दो वंड दो, वधिया वधिया लिखियो। अच्छा, दूजा फिर आपने शेप्स से चले गए, ठीक है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ शेप्स से चले गए। तीजा पॉइंट आप सीखा इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। पंजवा पॉइंट की सीखा कि असी डे टू डे लाइफ तो मैथ्स का फार्मूला किवें बना के नाम पिज्जा पाई जेड स्क्वायर है, ये बड़ा कॉमन है बट मैं रिवाइज करवाया है। इसी तरह we talk about the pressure, the burden, then we had the interactions by Amit sir, then after that we had a lunch and then the post lunch session. So dear teachers, anybody would like to summarize and wind up? If anybody wants to come and say a few words, anybody voluntarily, I request. Ma'am, would you like to say something? कोई भी? Yes ma'am, please. Actually थोड़ा एक पॉइंट है, I am technologist but I use natural intelligence. I use artificial intelligence only when natural intelligence is not present. I don't believe in showing slides and short clips videos. That is lying on my YouTube channel, Vipin Sharma Physics channel, you can see there. मैं नेचर तो फिजिक्स ਨੂੰ डिकोड करके बहुत वीडियोस बनाई हैं, ऑल नेचर इज फिजिक्स, बट फिजिक्स दी बेस है मैथ्स, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दैट मैथ्स व्हिच इज ऑफ लोअर क्लासेस। एंड माय ऑनरेबल मैम इज देयर, यू वुड नेम एंड प्लीज इंट्रोड्यूस एंड बी बिफोर द कैमरा एंड जस्ट हेल्ड इट इन द अदर हैंड। Myself Rajinder Kaur Brad. I am working as a maths teacher since 2011 in Akal Academy, Shri Muktsar Sahib. When I came in the academy, that time I faced problems about result. Like sir, how Jason sir said, na, I feel a burden like that. But with the experience, now I have never given the homework to the student and I am getting good result. Only I have changed my method of teaching. Some students are thinking math is very tough. Firstly, we should create interest among the student. How I have created interest? When I am going in any class first time, then I am telling one secret of success to the student. Firstly, I am closing the door and then I am collecting the student together. Then I am saying, today I am going to tell you one secret of success and that you should never tell to anybody. What they are doing, they are listening. They are thinking what ma'am is going to tell. They are having interest. Then I am telling them about which work we are doing daily in the class that you should do at home. That if you want to do something extra,
how sir said, we if we will denote time, some extra time we need, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਕਰਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, 4th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਟ ਦੇ ਨੋ ਸੀਕਰਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ। we are having homework schedule days, only 3 days we are giving homework, and I have never beaten a child. Great. Never I have beaten. Now from last 4-5 years I am working as a coordinator also. When I am going from my corridor, they are going in the classes, they are loving me also. It is not like that they are afraid from me only, because if we ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। How was the workshop today? Very nice sir. We नहीं, have नहीं, learned. I want नहीं, practical we feedback. have learned many things. Yes ma'am, actually teachers का एक बहुत ਵੱਡਾ teachers ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟੀਚਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਬਿਨਾ ਬੱਚਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ would you like to summarize the outcome of the today's workshop? मतलब आज ਦੀ workshop ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੋ ਪੇਪਰ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਟਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਵਰਡਸ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੰਦੂਕ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖੜਾਉਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁੜ ਪਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਰੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ
thank you very much, and thank you for Amit ji. Thank you for your workshop, and kindly conclude it. I find you are a wonderful speaker, sir. A big round of applause for Mr. Amit Nagpal. Thank you, sir, for your valuable time, and thank you, teachers, for attending our workshop, and thank you, sir, for providing us a wonderful workshop. I don't know whether it is wonderful or not, but मैं दिल तो बोलिया समझे मेरे कोई कंटेंट रेडीमेड नहीं है कि चोरी नहीं किया होया प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कीतियां तो इन द फाइनल वर्ड्स दिल तो नहीं है कि इनू वाइंड अप किया जाए बट कोई बेंच फड़ के तो नहीं बैठा भी भजन दिल करता सो मेरा पंजाब बहुत प्यारा है मेरा पंजाब इन्ना वधिया है कि ਜਦੋਂ मैं ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸੁੱਡ ਲਵੇ ਜੀਪੀਆਰਐਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਾਝੇ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਧਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਰੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਜਾਈ ਪੈ ਜੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਥਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਇੱਥੋਂ थोड़ा सा भावुक माहौल हो गया 2 मिनट मिल जाएंगे नहीं है ही वर्कशॉप इन्हों की मैं तो थोड़ा पहला क्या जो वर्कशॉप चंगेगी फिर यस शी वांट्स टू से ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 36 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੈਥ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 34 ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 34 ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ ਐਂਡ 34 ਪੂਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਨੂੰ ਮੈਥ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹ 3rd ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਕਰਵਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ 12th ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਰਾ ਰਾਗ ਰਵਾਬੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਬਾ ਹੋਵਾਂ ਨੰਨਾ ਨਾਨਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕੱਕਾ ਕਣਕ ਦਾ ਖੱਖਾ ਖੂਹ ਦਾ ਫੱਫਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਜੱਜਾ ਬਣੇ ਜਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੱਪਾ ਪੱਗ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਸੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਵਾਂ ਗੱਗਾ ਗਦਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਦਾ ਦੱਦਾ ਦਇਆ ਹੋਵਾਂ ਅੱਖਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ So you can watch on Saturday, Friday night
I will upload. And God bless you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਨੰਦੜਾ ਮਾੜਾ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਭਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਥਾਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਥਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, क्षमा। बट एक गल जरूर ना मन पाउंदी, मैं कह गया कि एक्स्ट्रा टाइम देना पैना है। मेरी देखो जी थ्योरी है, जिन्ना गुड़ पावांगे उन्ना मिठा। थैंक यू।